हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं सब? तो स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर अकबर आया अकेडमी। चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 21 नवंबर। कल इलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र इज हाईएस्ट टर्नआउट इन 30 ईयर्स। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। अभी दोनों भी टक्कर की होने वाली। 65% हुआ 2024 के लिए महाराष्ट्र में। तो अभी तक का हाईएस्ट है ये। चलिए देखते हैं अभी कौन आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू डी एस्केलेशन, फोकस ऑन कोऑपरेशन, चाइना काउंटर पार्ट। दिल्ली मूव टू 50% वर्क फ्रॉम होम, आस्क प्राइवेट सेक्टर टू फॉलो। ग्रैप रिवाइज्ड। स्कूल्स टू शट ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस बंद होने वाले हैं अभी। ऑनलाइन पर आ जाइए। बिगिन टू स्लाइट राइज इन टर्नआउट। चलिए हम एडिटोरियल पे आ जाते हैं। New wind in Colombo. Progressive turn in Sri Lankan politics will be tested by new government's negotiation of economic crisis. Don't lose moment when decisions on subsidy and procurement are delayed or out of sync with market realities. Both farmers and consumers suffer. ठीक है। Tightening the norm. SEBI pushes for stricter guidelines for SME IPOs to protect investor interest. It's a step in the right direction. My body, whose choice? Honoring TM Krishna. नहीं। State of partylessness. Kerala Palakkad. Free market needs free speech. SEBI proposal to regulate digital platforms, control influencer content, expands its powers and daily restricts price discovery. ठीक है, बोल सकते हैं वैसे। लेट क्रिकेट ब्रिज द डिवाइड। आजकल इतनी खास नहीं। व्हाट टू नो अबाउट इंडोर एयर क्वालिटी एंड एयर प्यूरिफिकेशन। इंडियाज अंडर ट्रायल बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इलेबोरेटेड बाय पुतिन। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, इंडोर सोर्सेज, मेजरिंग एयर पोल्यूशन, व्हाट टू नो अबाउट प्यूरिफायर्स, एथिकल इश्यूज इन प्यूरिफिकेशन। ना है क्या ये अभी? इंडोर एयर पॉल्यूशन देखना पड़ेगा। स्टोरी हिस्ट्री एक्सपीडिशन सेंट फ्रांसिस जेवियर इन गोवा। देख सकते हो, ऊपर ऊपर एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सेक्शन है, अंडर ट्रायल बिजनेस वाला। व्हाट डज सेक्शन 479 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, which provides relaxed bail standards for first time offenders state. What the Supreme Court said on the matter? What is the status of under trial prisoners in India? अंडर ट्रायल्स तो बहुत सारे हैं अभी तो फिलहाल। Union Home Minister Amit Shah on Tuesday that said that under trials who have spent more than third of the maximum prescribed sentence for the crime they are accused of committing should be released before Constitution Day. Highlighting the new relaxed provisions on bail for first-time offenders in the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, Shah said, संविधान दिन से पहले ये देश के जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी एक तिहाई सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन डे वी वांट टू मेक श्योर देयर इजंट अ, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन। What does Section 479 of BNSS, which provide relaxed bail standards for first-time offenders, state? What has the Supreme Court said on the matter? And what is the state of under trials in India? देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। अंडर ट्रायल्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आ सकता है, ये एग्जाम में तो आएगा ही आएगा और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस लेस डाउन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेंड। एक मैक्सिमम पीरियड इन्होंने बताया है कि भाई मैक्सिमम पीरियड कितना अंडर ट्रायल में रह सकता है एक प्रिजनर।
It states that a prisoner who is not accused of offenses punishable with death or life imprisonment shall be released on bail if she has undergone detention for a period of extending up to one half of the maximum period of imprisonment specified for that of offense under that law. This same standard was provided under the previously applicable section 436A of the Code of Criminal Procedure 1973 CRPC. But the BNSS has also relaxed the standard further in cases concerning first-time offenders, requiring such accused persons to be released on bail after they have spent one third of the maximum possible sentence in prison. It states, provided that where such person is a first-time offender who has never been convicted of any offense in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period of extending up to one third of the maximum. देखो, अगर कोई प्रिजनर है और उसने वन थर्ड अपनी जो टर्म है, जो भी उसको सजा होने वाली है, उसका वन थर्ड उसने काट लिया है, तो उसको छोड़ देना चाहिए ऑन बेल, ऐसा इनका मानना है. The provision, however, clarifies that an accused shall not be released on bail by the court if there are pending investigations or trials into more than one offense or in multiple cases. अभी ये क्या बोल रहे हैं, अगर वो पहली बार कर रहा है कोई भी ऑफेंस, इसके पास्ट में कुछ ऑफेंस नहीं किया है उसने, तो उसको रिलीज किया जाना चाहिए बॉन्ड के, एक बॉन्ड देना चाहिए कोर्ट ने. और अंडरगॉन डिटेंशन, अगर वो डिटेंशन जाता है वन थर्ड ऑफ द एग्जाम, मतलब वन थर्ड ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसे छोड़ देना चाहिए वैसे. हाँ, अगर उसका जो केसेस अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो फिर नहीं दे सकते. ठीक है, फिर बेल पे रिलीज नहीं कर सकते. टॉप कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन. इन ऑगस्ट, अ बेंच ऑफ जस्टिसेस Hima Kohli and Sandeep Mehta held hearings on these issues faced by under trial prisoners in the case in inhumane conditions in 1382 prisons. The case began as a PIL after former Chief Justice of India R.C. Lahoti sent a letter to the courts highlighting issues such as overcrowding in prisons, unnatural deaths of prisoners, and the inadequacy of trained prison staff. Since 2013, the court has been hearing cases relating to prisons in this case. Senior advocate and amicus curiae, friend of the court appointed by the bench to assist the court, Gaurav Agarwal, submitted on 13 August that Section 417 of the BNS needs to be implemented at the earliest. It will help in addressing overcrowding in prisons. Noting that new prisons was more beneficial, the court on August 20 ordered Section 4 would apply retrospectively to cases that were registered against first-time offenders even before the BNS came into effect in July 2024. Additional Solicitor General Aishwarya Bhati communicated the center's agreement to this measure before the order was passed. देखो, इसमें क्या बोला गया है अभी, इतना सब कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, तो वो बहुत सारा चल रहा था कि PIL वगैरह डाल रहे थे, पर इतना कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं हो पा रहा था. तो उधर प्रॉब्लम बहुत सारे आ रहे थे. एक तो ओवर क्राउडिंग हो रहा था, अननेचुरल डेथ हो रहे थे प्रिजनर्स के, ट्रेंड पर्सनल प्रिजन स्टाफ नहीं था. शेयरिंग के टाइम पे तो ऑलमोस्ट प्रिजन तब तक उनकी हालत भी बहुत खराब होती थी. तो इसलिए ये बोल रहे कि जो BNSS है, ये जो आर्टिकल सेक्शन है 479 को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये जो ओवर क्राउडिंग है एटलीस्ट वो तो भी एड्रेस हो जाए. और एक नया प्रोविजन भी डाल दिया जाए कि जो भी मोर बेनिफिशियल द कोर्ट ऑन ऑगस्ट. और ये भी है कि जो अभी देखो, भारतीय न्याय जो BNSS अभी जो लगने वाला है, तो वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया था ना. तो ये बोल रहे कि भाई जो भी पहले है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, इसके पहले भी जिन्होंने किया रहेगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, उनको भी ये लागू हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली. मतलब क्या, अभी हमने ये लॉ लाया है, पर इसका जो इफेक्ट है वो पिछले जो भी रहेंगे ना फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, उनको भी लागू होना चाहिए. तो ये बोल रहे पूरा इसमें. The court ordered all state governments and union territories to file affidavits within 2 months detailing the number of under trials who would be entitled to extension of the benefit of Section 471 or 479 of the BNSS, the number of applications moved before the concerned court for their release, and the number of under trials actually released by the date of filling of the affidavits. The court also ordered jail superintendents to send reports with this data so that the states and UTs could collect them for their final affidavit. ठीक है, इनको ऐसा बोला गया है कि जो भी ये अभी जितने भी अंडर ट्रायल्स रहेंगे, तो वो बेनिफिट मिलना चाहिए ये सेक्शन का. 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने फाइल एफिडेविट करना चाहिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और सुपरिटेंडेंट जो भी रहेंगे उनको रिपोर्ट सेंड करनी चाहिए. Notably, Section 479 already places a duty on the superintendent of the jail to send an application to the court for releasing a person on bail under this section once the relevant time period, either half or one third of the maximum sentence has elapsed. However, on October 22, a new bench comprising Justice and SVN noted that only 19 or 36 states and unions had filed responses. On November 19, the Supreme Court once again ordered all jail superintendents to identify all under trial prisoners, especially women, who would be entitled to bail under इंडियाज अंडर ट्रायल बिजनेस. अभी देखो देखो ये क्या बोल रहे हैं अभी, ये 2-3 पैराग्राफ में. एक तो जो
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी सुपरिटेंडेंट्स रहेंगे तो उन्हें रिपोर्ट भेजना चाहिए इनके डाटा के साथ। पर अभी देखा जाए तो 36 स्टेट्स में से बस 19 स्टेट्स ही ऐसे है जो उन्होंने ये किया है। बाकी इनको इतना कुछ नहीं दे रहे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सभी को अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को, मतलब जो भी सुपरिटेंडेंट्स हैं, मतलब कौन से जेल वाले, तो सभी को भेजना चाहिए, स्पेशली वुमेन में, ताकि उनको बेल ग्रांट कर सके। अभी इंडिया के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कंडीशन क्या है वो देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू नेशनल, अभी ये देखो, ये जो डाटा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में कोट करना चाहिए अगर अंडर ट्रायल पे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022, मतलब पब्लिश इन दिसंबर 2023, 5,73,220 people incarcerated in Indian prisons, 4,34,000 are under trial against whom cases are still pending। देखो, इंडियन प्रिजन्स में ऑलमोस्ट 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और अभी 4.5 लाख के आसपास भी अंडर ट्रायल्स है जिन पर अभी भी केसेस पेंडिंग है। दिस अमाउंट्स टू नियरली 75% ऑफ ऑल प्रिजनर्स। ऑफ द 23,772 वुमेन इन prisons, 18,000 आर अंडर ट्रायल। मतलब ये 76% है। मतलब कितना डेंजर हाल है, अभी तक अंडर ट्रायल्स में ही है। The report does not record how many under trial prisoners were first-time offenders. As of 31st December 2022, around 8.6% of all under trial prisoners had been in prison for more than 3 years। अभी तक वो डाटा भी नहीं कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कितने हैं क्या है। पर इतना पता है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है उसमें से 8.6% जो है वो 3 साल से भी ज्यादा प्रिजन में रह चुके हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं ये। तो अंडर ट्रायल्स पे ये सब डाटा था। तो 479 सेक्शन एक थोड़ा सा राहत दे सकता है अंडर ट्रायल्स के लिए। आज की इसमें इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये ऊपर ऊपर देखना था हमें। Who was Saint Francis Xavier? What happens during their exposition? When did this tradition begin? What specifically have been made for this exposition? ठीक है, एक आइडिया लगना चाहिए कि भाई है कौन ये। स्पेनिश Jesuit missionary Saint Francis Xavier returned to as Coincho Lord of Goa. Arrived in Goa, then a Portuguese colony in 1542. His primary mission, as ordered by King John III, was to restore Christianity among the Portuguese settlers। क्रिश्चियन मिशनरी थे। Sen died in 1552 on Shangchuan Island of China's coast. He was first buried on the island. The following year, his body was exhumed and transported to Malacca, where it was housed। अच्छा ठीक है, इतना खास नहीं है इतना। कि आइडिया लग गया है इसमें क्या दे सकते हैं, ये पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क टू ग्रोथ डिस्पाइट likely slowdown in September। ये क्या एक्सप्लेंड है? नोकिया बैग्स मल्टी बिलियन। सेटबैक्स फॉर बाइजूस एज एसेंटली स्टेज आकाश बिट्टू अमेंडो ये। एवरेज होम प्राइसेस इन टॉप 7 cities rise 23% to 1.3%। ठीक है। रोहित लिटमस टेस्ट। नहीं इतना कुछ है नहीं है आज के इसमें पेपर में भी। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज पिन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चांसेस आर लेस कि कुछ अच्छा रहे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर। जय हिंद।